Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to discuss editorial video of minimum operations to make the array k increasing from AdCoder weekly contest 272 hard question. Okay, so questions easy थे इस contest के and ये hard question भी like medium complexity का है. So let's discuss this question. You are given a zero index array consisting of n positive integers and a positive integer k. Okay, we have two things, an array of n positive integers and a positive integer k. The array is called k increasing if array of I minus k is less than equals to array of I for every index from k to n minus 1. Okay, so basically ये था. अब basically अगर मैं generalize करूँ question को तो simple सा question है that if k is equals to 2 है and you have this array, what you have to simply check is if this array is k increasing or not. हर kth element उसके जो I minus kth element है it should be equal or greater than. ओके, तो 4 से जैसे 5 बड़ा है या इक्वल है, 1 से 2 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, 2 से 2 इक्वल है. ओके, सो however the same array is not k increasing if k is equals to 1. if k is equals to 1 होता then 4 is less than 1. this means 4 is greater than 1. this means this array is not k increasing. Okay, in one operation you can choose an index I and change array of I to any positive integer. Okay, in one single operation you can change any element from the array to any positive integer. Return the minimum number of operations required to make the array k increasing for the given k. Okay, we have a array, we have value of k and we have to return minimum number of operations to make this array k increasing. Okay, now in this suppose in this example we have 5 4 3 2 1. Okay, and answer is 4. K is equals to 1, so we have to check this element. 5 से just 4 is less than 5, it means we have to change 4 to some equal or greater element. then 4 के लिए हमें 3 देखना है. ठीक है, तो 3 4 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए. सेकेंड ऑपरेशन 2, it must be changed because it must be greater than 3 or equals to 2. Okay, so third operation and this one is fourth operation, so that's why answer is 4. Okay, so let's see constraints also. Array length is 10 raised 5, so somewhere we can do this question in n log n something. Okay, fine. So now I'm generalizing the question. What we have is we have some array a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7. सपोज k इज इक्वल्स टू 2 था मेरे पास. ओके, तो व्हाट आई विल सी फ्रॉम हियर इज एक मेरी जो सब एरे बनेंगे, ठीक है, या फिर सब सीक्वेंस बोलो तो मुझे एक ये एलिमेंट, इसके लिए मैं कौन सा एलिमेंट चेक करूंगा, दिस एलिमेंट. इस a3 के लिए मैं कौन सा एलिमेंट चेक करूंगा, दिस एलिमेंट. एंड इस a5 के लिए मैं कौन सा एलिमेंट चेक करूंगा, a7. ओके, सो बेसिकली इफ आई विल चेंज a5 it will affect only a3 and a7. okay, मुझे अगर मैंने a5 चेंज किया it will not have any effect in a4 a6 a2. okay, so changing a5 will only affect its subsequence elements. okay, suppose मैंने a1 चेंज किया. अब a1 में मैंने कुछ ऐसा चेंज किया कि मैंने ये इनिशियली 1 था, मैंने उसको 7 बना दिया. तो इस 7 से क्या इफेक्ट होगा, ओनली a3. मुझे 7 से बड़ा बनाना पड़ेगा. एंड सिंस a3 इज गेटिंग अफेक्टेड a5 विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. एंड सिंस a5 इज गेटिंग अफेक्टेड a7 विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. ओके, तो इन सिंपलर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई हैव k is equals to 2, I will have this subsequence that is from a1 a3 a5 and a7, and if I will change any of these elements among these 4 elements, it will only affect its subsequence. okay, or you can say its kth array, कुछ ऐसा तुम बोल सकते हो. ठीक है, फाइन. तो मेरे पास एक सबसीक्वेंस क्या आ जाएगा, a1 a3 a5 and a7. ठीक है, दूसरा सबसीक्वेंस क्या बनेगा, when I will start from a2. okay, it will affect a4 and since it will affect a4 it will also affect a6. okay, and we have no further elements. ठीक है, तो मेरे पास इस तरह सेकेंड सब सीक्वेंस बनेगा a4 a2 a4 and a6. okay, now in the same way I will have different subsequences. okay, कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है उनकी,
सिंस k इज इक्वल्स टू 2 है एंड n इज इक्वल्स टू 7, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी सबसीक्वेंस कैन बी n बाई k। फ्रॉम दिस तुम्हें इजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड एट मैक्स मेरे पास कितने सबसीक्वेंस हो सकते हैं, k सबसीक्वेंस। ओके, सिंपल सी चीज है। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे ये वाले एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। नाउ व्हेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट दैट इज k इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैं सेकंड एलिमेंट में आया, मेरे बाकी सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी थर्ड में आओगे तुम, तो वो थर्ड एलिमेंट जो होगा वो ऑलरेडी किसी सबसीक्वेंस में आ चुका होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि मेरे पास एट मैक्सिमम कितने सबसीक्वेंस होंगे, दिस। नाउ मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। आई हैव k सबसीक्वेंसेस। ओके, अब इन k सबसीक्वेंसेस में मुझे हर एक सबसीक्वेंस को क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है सच दैट जो a1 है, सच दैट जो a1 है वो कुछ ऐसा हो, मेरा ये जो सबसीक्वेंस है वो कुछ ऐसा हो। इन सिंपल वर्ड्स, ओके, इन सिंपल वर्ड्स माय सबसीक्वेंस मस्ट लुक लाइक दिस। ओके, जो ये कौन सा होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस होना चाहिए। ओके फाइन। सो इफ आई कैन रिलेट दिस क्वेश्चन टू सम प्री एस्टैब्लिश्ड, और कोई पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकूं, तो मेरे पास नॉन डिक्रीजिंग क्वेश्चन, नॉन डिक्रीजिंग एरे बनाने के लिए एक क्वेश्चन होता था LIS, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, जिसमें मैं पढ़ता था अभी तक, ठीक है। मेरे पास एक, मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ रखा है। इफ नहीं, यू कैन सिंपली सर्च इन गूगल एंड यू विल गेट इट। ओके, अब मुझे इस सीक्वेंस को कुछ ऐसा बनाना है सच दैट ये नॉन डिक्रीजिंग हो जाए। व्हाट आई कैन सिंपली डू इन इट इज, अगर मैं इस क्वेश्चन को अब जनरलाइज कर दूं, तो मिनिमम ऑपरेशंस आई हैव टू डू टू मेक दिस सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मिनिमम ऑपरेशंस विच आई हैव टू डू टू मेक एनी सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग, बहुत जनरल क्वेश्चन है। ओके, अगर तुम गूगल करोगे तो तुमको पूरा कोड भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें करते क्या है एग्जैक्टली ये देखते हैं। सपोज आई हैव अ सीक्वेंस एंड आई हैव टू मेक इट नॉन डिक्रीजिंग, व्हाट आई विल सिंपली डू, मुझे इसमें कुछ एलिमेंट्स चेंज करने हैं। ओके, आई हैव टू चेंज सम एलिमेंट्स, व्हाट आई विल सिंपली सर्च, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू change minimum number of elements to minimize my number of operations. Okay, to change minimum number of operations what I will simply do, मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है 1 2 5 3 7। ओके, मुझे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज करने, व्हाट आई विल सिंपली चेक, मैं इसमें ऑलरेडी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकाल लूँ अगर, दैट इज 1 2 5 7, ठीक है। ये इस पूरे सीक्वेंस में लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ना, ये इस पूरे सीक्वेंस में लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। ओके, इसके अलावा मुझे और कोई भी नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं मिल रहा जिसको मैं एज इट इज रख लूं और बाकी सारे एलिमेंट्स चेंज कर दूं। तो व्हाट आई विल सिंपली डू, यहां समझना कि जो भी ये सीक्वेंस है मैं इसमें क्या निकालूंगा, लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकाल लूंगा। ओके, एंड जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली उन सारे एलिमेंट्स को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, I will get minimum elements which I have to change to make complete sequence non-decreasing sequence. Okay, तो in this way मैं इससे क्या निकालूंगा, सिंपली एक non-decreasing subsequence जिसकी लेंथ longest होगी, ठीक है, वो निकालूंगा। एंड आफ्टर दैट what I will simply do is I can change all other elements which are not getting included in this non-decreasing subsequence. Okay, fine. Now how I am going to do that? Again बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हें किसी सीक्वेंस, तुम्हें कोई सीक्वेंस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस और लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग बोलो यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी इक्वल ऑल्सो, फाइन। इस लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस को हमें निकालना है। अब क्या हमें पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्रिंट कराना है, जस्ट सिंपली चेक आउट दिस थिंग। मुझे एग्जैक्टली इस सीक्वेंस से चाहिए क्या, दोज एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which I have to change, है ना, which I have to change. Okay, how can I get that? I will simply find out length of
LIS, ओके, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, एंड इस कंप्लीट सीक्वेंस की जो लेंथ है उससे मैं अगर LIS की लेंथ माइनस कर दूं, what I will simply get number of elements which I have to change, okay, and in simpler words मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस सीक्वेंस के लिए ये पता चल जाएगा number of elements which I have to change और minimum operations which I have to do in this sequence. Again I will repeat the operation, I will find out number of operations which I have to do in this sequence and simply total number of operations कितने हो जाएंगे इन सबका sum. ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नाउ माई सिंपल एंड ईजी थिंग विच आई हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज आई हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस. ओके, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है. वन मोर थिंग, इफ यू हैव टू फाइंड ओनली लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ओके, सिंस मुझे यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रिंट नहीं करना, आई हैव टू फाइंड ओनली लेंथ ऑफ दिस सब सीक्वेंस. This thing I can do in n log n. Okay, मैं ये लेंथ n log n में ही निकाल सकता हूँ. This is the most optimized solution, that is n log n. Okay, but if you have to print longest increasing subsequence, you have to do dp in that, and for that you will take n square complexity. Okay, तो since मुझे यहाँ पे लेंथ बस चाहिए, I will do it in n log n. अगर मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रिंट करना होता, आई वुड हैव टेकन n स्क्वायर टाइम टू डू दैट. ओके, नाउ लेट्स जस्ट गो टू इन द क्वेश्चन थिंग. ओके, ये जो मेरा कोड है, ये इसमें मैं एक सीक्वेंस दूंगा और ये मुझे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस रिटर्न करके देगा, दैट इज v.size. ओके, एंड ये मेरा मेन फंक्शन है. इसमें मुझे दो वैल्यूज हैं a एंड k. Simply I initialize my answer with 0. In total I will be having k subsequences, okay, or you can say k sequences of complete array. ठीक है, मैंने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया और उसमें करंट सबसीक्वेंस डाल दिया, ठीक है, दैट इज हर kth एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स i, एंड सिंपली आई विल इंक्रीज माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाय current size of sequence minus length of longest increasing subsequence of current sequence. Okay, I hope ये चीज़ क्लियर हो रही होगी. That is number of operations जो मुझे current sequence में करने पड़ेंगे to make it non decreasing sequence, and at the end I will return the answer. For this code, that is to find out length of longest increasing subsequence in n log n time, you have to see a separate video. Okay, since मैं ये already बता चुका हूँ, तुम simply YouTube चैनल में जाओ और सर्च कर लो, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इन n log n. ओके, ये लीड कोड का एक फेमस क्वेश्चन भी है, दैट इज LIS इन n log n. तुम्हें लीड कोड में भी मिल जाएगा ये, ठीक है. सिंपली ये देखो. ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन सिंपली गो एंड चेक, एंड दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर तुम्हें LIS के ऊपर क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन गो एंड चेक इन YouTube, and this was the complete question. If you still have any doubt, you can ask me in comment section, and all other 3 questions of this contest were easy, so I'm not going to make video on those. Okay, thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section.